Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to discuss about class 5th mathematics unit 2 operation on large numbers. So here I am observing some of the questions are given before the worksheet. So first we will try to recapitulate the topic we have studied in the previous class. The name of chapter is operations on large number. If you are able to see, operation means, what do you mean by operation? Operation means a simple fact. It may be addition, it may be subtraction. Take care, subtract. How will you subtract? Differentiation of number. Multiplication. Multiplication, we need to know how to multiply. Multiplication, all these are the mathematical operation. Multiplication and then division. So these are the basic fact we will discuss. We will try to discuss the way how to solve some of the difficult numerical problem in this video. So be with us so that you can understand the complete topic, not only just memorize the answer, but you will be able to solve the question based on the topic of multiplication, division, subtraction. So I will try to discuss this chapter very smoothly. So first question I am planning to discuss, yes, find the sum. One of the question is there. So how will you solve? First you need to write here place values. कैसे लिखेंगे? ones, tens, 100,000 and 10,000. Lakh is there. Now what will you do? Put the number here. Which number? Whatever number is given. First number ये है तो आप लिखिए 4,38,291 and the second number is 35,605 and the third number is 3,19,278. So students, out of these number you need to do the addition. How will you do the addition? Please help us to solve. Yes, ones place number should be added with the ones place. जो ones place के नीचे है उसको उसी के साथ प्लस करें आप. तो कैसे करेंगे? चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, करके साथ में करते हैं. आप ही प्लस करेंगे मेरे साथ. 5 plus 1 6, 6 plus 8 is equal to 14. Here should be 1 carry. 9 1 10, 7 17, again should be 1 carry. 2 1 3 3 6 9 9 2 11, again should be 1 carry. 8 1 9 9 5 14 14 and 9 23. Yes, 2 carry forward. 3 2 5 5 3 8 8 1 9 and no carry. 4 plus 3 is equal to 7. So students, here we got the answer, comma you can put 7,98,174. चलिए बी वाला क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं यहाँ हिंट कर देता हूँ. आपको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं हिंट बस करूंगा. वंस, टेंस, 100 और 1000, 10,000 और लाख हो जाएगा. अब इसमें आपको क्या करना है, इन नंबर्स को पहले इसको प्लस रखिएगा, फिर इसको, और फिर तीनों नंबर को आपस में रख करके प्लस कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, I hope you will be able to solve these two questions. So I am planning to discuss the next part of this question number 2. Find the difference की बात करते हैं. तो चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट वाले को कैसे करना है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो फाइंड द डिफरेंस, ये तो था, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ बिल्कुल, ये एडिशन वाला था. अब इस पेज को ले लेते हैं. फाइंड द डिफरेंस. देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है. यस बिल्कुल, आपको क्या करना है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन करना है. तो हम इसको मैं लिख चुके हैं क्वेश्चन को. अब आप मेरी हेल्प करेंगे सब्ट्रैक्ट करने में. 1 10 100,000 10,000 लाख, और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे उसको देखिएगा एक बार. 8 - 2 6, 4 - 6 तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बारो करना पड़ेगा. बारो करने में क्या ध्यान रखते हैं कि भाई 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो इससे बारो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 14, और यहाँ पर 1 बचेगा. 14 - 6 क्या होता है भाई, 8 होता है, और 1 में से 9 नहीं माइनस होंगे तो इससे बारो करेगा और 11 हो जाएगा. टेंस प्लेस से लेते हैं तो 11 - 9 इज इक्वल टू 2. 2 में से 4 माइनस नहीं हो पाएंगे तो यहाँ से हम लेंगे 6 और बारो करेगा तो हो जाएगा 12. 12 - 4 इज इक्वल टू 8, और 6 - 8, अरे बाबा बहुत ज्यादा बारो करना पड़ा इसमें. हमें मिला 4, और यहाँ हो जाएगा 16. 16 - 8 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3 1. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें क्या मिला, एक बहुत बड़ा सा नंबर मिला. 1,88,286 इसका डिफरेंस है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन. इसको कर लेंगे. सब्ट्रैक्शन में ध्यान ये रखना है, बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है, छोटे वाले को बाद में.
जब आप वंस, टेंस, 100,000, 10,000 इस तरह से लिखेंगे और लैख को तो पहले 9 लाख, इसको पहले बड़े नंबर को लिखिएगा, फिर आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और छोटे नंबर को थोड़ा उसके नीचे लिखेंगे। 7,11,498 ये नंबर आपको देखिए मिल गया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सोचिए। बिल्कुल आपने सही सोचा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, है ना। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ बताइए भाई? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को टच करूं जिससे आपको डाउट ना आए कहीं पर भी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट क्वेश्चन इज देयर। So how will you solve the question here? So students find the product में again I am solving third a question number, इसकी बात हम कर रहे थे। So how will you solve the question here? है ना। तो I am telling you once again that is how to solve the question. I think you are knowing the thing, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ones, tens, 100,000, here 10,000 and lakh, हालांकि इतने लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। 4908, 4908 का मल्टीप्लाई किससे करना है? बहुत बड़ा सा नंबर है 326, और आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है इस तरह की। अच्छा, इस लाइन को खींचने में हमें ध्यान ये रखना है कि भाई ये मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस नंबर को लिखने की। 6 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो 6 8 जा 48 होता है। 4 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, मैं कैरी को ऊपर लिख देता हूँ। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर कि 4 6 0 जा 0, तो कैरी यहाँ पर अपने आप कॉपी हो जाएगा। 6 8 जा 48, लेकिन 6 से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 0, और कैरी को यहाँ लिख लेंगे। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट नंबर है 6 9 जा 54। तो देखिए 6 9 जा 54 को कैसे लिखा जाएगा? 6 9 जा 54 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 9 जा 54 और 5 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। 6 9 जा 54 हो गया है, 5 कैरी, 6 4 जा 24, 24 एंड 5 क्या हो जाएगा? 29। तो ये हमारा नंबर मिल गया आपको। अब देखिएगा एक बात है, ये हमने 6 के साथ सबका मल्टीप्लाई किया चारों का, अब 2 के साथ में करेंगे, फिर उसके साथ 3 के साथ भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अच्छा एक बात और है, जो कैरी आपने यहाँ पर लिखा था ऊपर, उनको आप मिटा दें, वो केवल 6 के साथ लिखे थे उसकी थी। अब हम 2 के साथ इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैरी आएगी उसको ऊपर लिखेंगे। तो 2 चलिए ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक जगह छोड़ देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो 2 कौन से प्लेस में है? देखिए तो 2 इज इन द 10th प्लेस। जो 2 से मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा उसको 10th प्लेस से लिखेंगे, नॉट इन द वंस प्लेस। सो 2 8 जा 16 और 1 कैरी हो जाएगी, तो उसको यहीं पर फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि 2 9 जा 0, 1 यहाँ आ जाएगा। 2 9 जा 18, 1 कैरी हो जाएगी। 2 4 जा 8, 8 और 1 9। अब देखिए एक बात है, जब 3 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 3 के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो यहाँ पर पीछे आपको 2 प्लेस छोड़ने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि 3 इज इन द 100th प्लेस और 100th प्लेस से नंबर लिखना है। तो 3 8 जा 24 और 3 0 जा 0 है, इसीलिए 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 3 9 जा 27 और ये कैरी मिटा देते हैं, 2 कैरी हो जाएगी। 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना होता है? 12 एंड 2 इज इक्वल टू 14। तो मैं यहाँ पर 14 को लिख देता हूँ और एक लाइन ड्रा करता हूँ। लाइन कैसे करना है? यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो इनको प्लस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और यहाँ पर आएगा क्या होगा? तो 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 6 4 0 6 4 10, 1 कैरी हो जाएगी। यहाँ पर 4 1 5 1 6 4 10, 1 कैरी हो जाएगी। फिर से 9 1 10 8 18, 18 2 20, ओ 2 कैरी। नाउ 2 2 4 4 9 13 13 7, 13 and 7 again we are getting 20 and 2, it is 4 2 6 and 1, a large number we are getting 1 6 something is there। so number पढ़ेंगे तो 1,60,000, 100,000, 10,000, lakh and 10 lakh number पहुंच चुका है। so students something is there। so I hope कि you can solve this question, similar question।
I have solved only first question, but I expect that you will be able to solve the question number B also. So students, let us proceed with the next part, divide and check your answer. देखिए this is bigger question, चलिए इसको solve करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा कैसे solve करना है इसको, मैं एक दो क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आप अपने से करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फोर्थ का मैं पार्ट ले लेता हूँ, ए पार्ट, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। सबसे पहले तो हम डिवाइड कर देते हैं, 4182 को डिवाइड करते हैं 13 से। तो देखिए कैसे करेंगे आप डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग एक तरह से ब्लॉक बना लेते हैं। 4182 नंबर को ठीक से कॉपी करेंगे भाई। 13 देखिए इसको चेक भी करना है, सही है गलत है ना, आप ही टीचर हैं और आप ही अपना ही चेक करेंगे आप। तो 13 का अगर आपको 13 या कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे 45 आ गया, 13 आ गया, 29 आ गया, तो टेबल पढ़ना मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ऐसे नंबर का, बड़ा नंबर कोई मिलता है तो उसका आप मल्टीप्लिकेशन टेबल जरूर लिख लें। आप उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल मल्टीप्लाई करके अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में ही एक साइड में लिख लें, और जिससे आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। हालांकि 13 का टेबल आपको आता होगा, फिर भी नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, 10 तक टेबल आना चाहिए आपको। तो 13 वन जा हम यहाँ लिख लेते हैं 13, 13 टू जा आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 26, 13 थ्री जा 39, 13 फोर जा 52, 13 फाइव जा 65, 13 सिक्स जा 78 समथिंग, 13 7 जा भी ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि हमारा इतने में काम लग जाएगा मुझे लगता है। 13 5 जा 6 जा, या जिसका भी टेबल लिखे 5 जा 6 जा तक कर लें, और जरूरत पड़ेगी तो और लिख लीजिएगा। तो डिवाइड का क्या रूल है देखिए, तो इसको डिवाइजर कहते हैं, ये डिवाइडेंड है, ये फिर से देखिए डिवाइजर है। टेबल ऐसा पढ़ना है कि 13 का टेबल की 41 से ज्यादा ना होने पाए। तो 13 टेबल मैं पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ूंगा, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा जाएगा, आप देखिए यहाँ पर, तो 13 थ्री जा मैं ले लेता हूँ, इट इज 9, और इसको माइनस कर देते हैं, तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक बार में आप एक ही नंबर ले सकते हैं, फिर से सुनिएगा। फर्स्ट टाइम में तो मैंने 2 नंबर ले लिए थे, क्योंकि यहाँ पर 41 या 4 एक कम पड़ रहा था, मैंने 2 ले लिया था। तो फर्स्ट टाइम में किसी भी डिवीजन में आप कितने भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेप वाइज स्टेप आगे करते हैं तो हर स्टेप में आप एक ही नंबर ले सकते हैं। तो देखिए यार 28 है, 13 टू जा जाएगा, 13 थ्री जा ज्यादा हो जाएगा, तो 13 टू जा 26, और इसको माइनस करते हैं तो आई थिंक 2 होगा, और ये 0। तो अब हमें क्या बचा, 2, अभी 2 बचा हुआ है ऊपर का, उसको नीचे ले लीजिए, तो आप यहाँ बचेगा 2। आप स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, थोड़ा लाइन ठीक से खींचिएगा, मुझे यहाँ पर स्क्रीन में ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपको सीधा लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ, कहीं कहीं चेक करेंगे, लेकिन आप अपने से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। 13 वन जा 13 टू जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 वन जा मैंने क्या लिखा, 13 लिख दिया, और माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 9 और 0। तो देखिएगा ये जो नॉमेनक्लेचर हम इसका करते हैं, सो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं QUOTIENT, क्वाइशन कहते हैं इसको, इस वाले नंबर को जो ऊपर लिखा है। और 13 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइजर कहते हैं, याद रखना है। और इस नंबर को कहते हैं डिवाइडेंड, इसको आप याद रखेंगे, डिवाइडेंड है। और नीचे जो लिखा हुआ है इसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स चेक कैसे करना है वो मैं आपको चेक करने की कोशिश करता हूँ, पे अटेंशन। चेक कैसे करना है यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से, कि चेक कैसे करना है। चेक का मतलब टीचर चेक नहीं है, आप टीचर बनने वाले थोड़ी देर के लिए अपना आप। तो पे अटेंशन, आपको ध्यान रखना है क्वाइसेंट का मल्टीप्लाई, क्वाइसेंट का मल्टीप्लाई किससे करना है बताइए, डिवाइजर से करना है, और रिमाइंडर को प्लस कर देना। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर रिमाइंडर को प्लस करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, इसको प्लस करेंगे सबको, तो आंसर क्या आएगा, तो डिवाइडेंड आ जाएगा। इसको आप खुद से करके देखेंगे, क्वाइसन की वैल्यू कितनी है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वाइसन की वैल्यू 321 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार कि 300 कितना है बोलिए, 300, इट इज 321 है। डिवाइजर कितना है, 13 है, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 9 को प्लस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आना चाहिए जो आपका है 4182 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपका आंसर सही है। तो ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे इसको, है ना। हालांकि कुछ कठिन नहीं है, बस 321 का 13 से मल्टीप्लाई करना है, 321 का मल्टीप्लाई 13 से करना है, तो चेक हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
और 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। तो देखिएगा हमें क्या मिला यहाँ पर, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 7, यहाँ 9 2 11 और 3 1 4 हो जाएगा। प्लस 9 को इसमें प्लस कर लेते हैं क्योंकि 9 इज द रिमाइंडर। 9 3 12, A4 यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 4 1 8 2। तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 1 8 2 आ रहा है। और यहाँ नंबर जो लिए थे 4 1 8 2 है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करने से, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 1 8 2। सो आई थिंक कि आपको चेक करना भी समझ में आ गया होगा। मैं इन दोनों के आंसर को यहाँ पर लिख देता हूँ 4 1। इन दोनों को करने से मुझे आंसर आया 4 1 7 3 प्लस 9। और इन दोनों को करने से आंसर कितना आया है, तो आपने कहा 4 1 8 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर नंबर आ रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो आप समझेंगे कि आपका आंसर सही है। तो आप ऐसे ही कॉपी में लिख लेंगे इसको। कॉपी में इस तरह का ये सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा था। तो आप आई एक्सपेक्ट कि आप अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। आगे हम चलते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड वाला हो चुका है। एक क्वेश्चन मैंने किया है, बी वाला आप अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 45 का टेबल आप मैंने आपसे कहा है कि रफ में लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 को कैसे करना है, देखिए 5 वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में दो चीजों को आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें आपको एक तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन भी करना पड़ता है और वर्ड में प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट भी लिखना होता है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट में मैं कहूँगा आपसे कि बिल्कुल आप ज़्यादा टेंशन ना लें। जो भी आप लिखेंगे मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं है, आपको उसका मीनिंग निकल के आना चाहिए। तो जिससे द क्वेश्चन इज रितेश इज अ काइट मेकर, वो काइट बनाता है। इन वन सीजन ही सोल्ड 37,043 रेड काइट और 42,620 ब्लू काइट्स एंड 27,986 ग्रीन काइट्स। कुल कितनी काइट वो बना पाते हैं भाई साहब। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लिखिए, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, चलिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं क्या कि नंबर ऑफ, अच्छा नंबर को पूरे फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा है क्या भाई, दैट इज द नंबर ऑफ रेड काइट्स। देखिएगा नंबर ऑफ रेड काइट्स क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर आप आगे क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ ब्लू काइट्स। देखिए ऐसे आप पहले लिख लीजिए और फिर यहाँ पर बनाइए दैट इज द थर्ड कॉलम दैट इज द नंबर ऑफ ग्रीन काइट्स। तो स्टूडेंट्स हियर वी आर डूइंग द ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ क्या होने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ भाई, ऊपर आप कॉलम बना लें यार। यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, चलिए 10,000 तक बना ले कॉलम। देखिए ये उसको ऊपर बनाना है और आप लिखेंगे कैसे, अब आप इसमें देखेंगे, लिखें पहला नंबर 37,000 है ना, ऐसा कुछ नंबर है तो उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। 37 रेड काइट कितनी है, 37,000, वो शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। 37,000 मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, 37,000, here it is 43 and the second number is 42,000, it is 42,620 and the last number is 27,986। चलिए ये तो बात मिल गई आपको ऐसा। अब आपको टोटल नंबर ऑफ काइट निकालना है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, चलिए टोटल नंबर ऑफ काइट्स। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, इन नंबर्स को आपस में प्लस कर लेंगे, 6 3 9 4 2 6 6 8 14 1 कैरी, 9 6 14 14 1 15 1 कैरी और 7 1 8 8 2 10 10 7 17 7 1 8 8 2 10 10 7 17 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 4 4 4 8 8 2 6। चलिए इतनी काइट्स बनाया उन्होंने, कितने में भाई, उस सीजन में उन्होंने इतनी काइट्स बनाई है और बेची है। चलिए इतना लिख देना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर जो डिस्कस किए थे मैंने, वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नहीं तो अगले वीडियो में हम उसको बताने की कोशिश करेंगे आपको। पे अटेंशन,
कौन कौन से क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6th और 7th। और 6th में थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको, 6th 7th 8th अपने थोड़ा पढ़िएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में उसको बताने की मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छी राइटिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।